بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. مکمل کورس سبق نمبر 5C قرآن کا، یعنی 5واں صفحہ تیسرا حصہ، آیات بقرہ کی 34 اور 35. ہم نے سیکھا تھا اس صفحے کے اشارے: خلیفہ پر سوال، ناموں کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ. میرے بات دہرائیے ذرا. خلیفہ پر سوال، خلیفہ پر سوال، ناموں کی تعلیم، ناموں کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ. پھسلانا اور توبہ. میرے ساتھ بولیے: خلیفہ پر سوال، ناموں کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ. اور ایک بار: خلیفہ پر سوال، ناموں کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ. نیکسٹ ٹائم جو ہے آپ کو یہ اشارے نظر آئیں جو یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، یہاں پر تھوڑا سا الگ ہے. بہرحال یہ اشارے یہ آپ بھی لکھ سکتے ہیں اپنے مصحف پر. آپ کے پاس یہ مصحف تو نہیں ہے، مارجن میں لکھ لیجئے تاکہ آپ کو یہ نظر آتے ہی پوری صفحے کا مضمون آپ کو آ جائے گا. تو ہم نے 2 اشاروں کا کام کیا ہے، یعنی 2 اشارے دیکھ لیے ہم نے، ایک تو خلیفہ پر سوال کو اور ناموں کی تعلیم کو. اب ہم سیکھیں گے سجدہ اور ابلیس. ٹھیک ہے، تو لفظی ترجمہ کرتے ہیں پہلے. وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، اسجدوا، سجدہ کرو. اسجدوا اشارہ کیسا ہوگا اسجدوا کا؟ اسجدوا، سجدہ کرو. تو اس نے سجدہ کیا، کیا ہوگا؟ سجدہ. 6 چابیاں: سجدہ یسجد اسجد، سجدہ یسجد اسجد، ساجد مسجود سجود، ساجد مسجود سجود. ٹھیک ہے. مسجود ملائکہ اردو میں ہم کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو، یعنی مسجود جس کو سجدہ کیا گیا. مسجود ملائکہ یعنی آدم علیہ السلام وہ تھے جن کو سجدہ کیا گیا تھا. فسجدوا، تو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کس کو سجدہ کرو؟ آدم کو، آدم کے لیے. تو پس سجدوا، سجدہ کی جمع سجدوا، ان سب نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس، ابلیس کے سوائے ابلیس کے. چلیے کوئز آ گیا. هل سجدتم فی الفجر، کیا فجر کی نماز میں آپ نے سجدہ کیا؟ چلیے جلدی سے جواب دیجئے کیا ہوگا. نعم سجدوا فی الفجر، سجدت فی الفجر، سجدنا فی الفجر. آلرائٹ، ہم اسٹاپ کرتے ہیں. 20 سیکنڈ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ پول میں. تو اسٹاپ شیئرنگ ریزلٹس. ماشاءاللہ تقریباً سبھی نے صحیح جواب دیا. میں نے پوچھا حل سجدتم، کیا تم نے سجدہ کیا فجر میں؟ آپ کہنا چاہیے ہاں ہم نے سجدہ کیا فجر میں. نعم سجدنا فی الفجر. چلیے ماشاءاللہ آگے. فسجدوا الا ابلیس، تو سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے. کیا ہوا اس کے بعد؟ ابا واستکبر، ابا اس نے انکار کیا. یہ نیا لفظ ہے، ٹھیک ہے، نیا لفظ ہے. ابا اس نے انکار کیا. اس کو ہم دوسرا کلر لیتے ہیں. ابا اس نے انکار کیا، اور یہاں پر جو ہے نمبر نظر آ، نمبر 9، ورڈ نمبر 9، اس نے انکار کیا. یس، اس نے انکار کیا. واستکبر، اور استکبار کیا، تکبر کیا. یہ بھی نیا لفظ ہے، تو یہاں پر اس کی معنی دیا گیا ہے نمبر 1، ورڈ نمبر 1، اور تکبر کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وَكَانَ اور ہو گیا، من الکافرین انکار کرنے والوں میں سے. ٹھیک ہے. چلیے اس میں ہم نے کیا سیکھا؟ ابا اور استکبارہ سیکھا. ابا جو ہے ایڈوانس فارم ہے، یعنی ابا ہم نے سیکھ لیا تھا. ابا، تو ابا کو لیتے ہیں. ابا کس کے ویسا ہے؟ دیکھنے میں تو ہدا کے ویسا ہے، لیکن یہ ابا یا بی نہیں ہوتا، یا با ہوتا ہے. تو یہ فتحہ کے وزن پر ہے، اسی لیے ہم نے اس کو فتحہ فا دیا ہے. اس طرح کے بھی الفاظ ہیں، چونکہ زیادہ نہیں اس لیے ہم نے نہیں لیا. جیسے سعا، اس نے کوشش کی، یا سعا جو ہے وہ کوشش کرتا ہے. ابا اس نے انکار کیا، یا ابا وہ انکار کرتا ہے. ایبا انکار کر. تو ایک بار 3 کو دہرائیے: ابا، یابا، ایبا. ابا یابا ایبا. باقی تو جو ہے نا آبین انکار کرنے والا، مابیون جس کا انکار کیا، ایبا انکار کرنا زیادہ نہیں آیا، تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. استکبرہ ایڈوانس فارم ہے، ٹھیک ہے، اس کو بعد میں دیکھ سکتے ہیں. کفرہ، کافرین، کافرین کا اشارہ کیجیے.
काफिरीन, कफरा 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 काफिरीन, उसने कुफ्र किया कफरा। मेरे बाद कफरा यकफुरु उकफुर, कफरा यकफुरु उकफुर, काफिर मकफूर कुफ्र, काफिर मकफूर कुफ्र। माशाअल्लाह। अबा वस्तकबरा, तर्जुमा कीजिए। अभी आपने देखा वो इनकार करता है, तकब्बुर करता है, या उसने इनकार किया तकब्बुर किया, या उसने इनकार किया और उसने तकब्बुर किया। दूसरे में है पस उसने तकब्बुर किया, तीसरे में और इसने तकब्बुर किया। शेयर रिजल्ट्स, सी जो है सही जवाब था। स्टॉप शेयरिंग, उसने इनकार किया अबा वस्तकबरा और इस्तिकबार किया, तकब्बुर किया। ठीक है, आगे चलते हैं। वकान मिनल काफिर, वकुलना और हमने कहा या आदमू, है आदम, उस्कुन रह, उस्कुन का मतलब नया लफ्ज है रहो, या उस्कुन रह या रहो, अदब से कहेंगे रहो। अंता आप या तू, व और जौजू का तेरी बीवी। जौज जो है जोड़े को कहते हैं, जौज की जमा अजवाज है। जौजू का तुम और तुम्हारी बीवी रहो अल जन्नता, जन्नत में। व और याद रखिए, व और कुला, तुम दोनों खाओ। कुला यानी तुम दोनों खाओ। मिनहा, उसमें से। रगदन बाफरागत, रगदन भी नया लफ्ज है। रगदन यानी बाफरागत, इत्मीनान से खाओ। हैथु भी नया लफ्ज, हैथु यानी जहां से। शितुमा, तुम दोनों चाहो, तुम दोनों जहां से चाहो, ये भी नया लफ्ज है। शितुमा, तुम दोनों चाहो, और इसकी पूरी प्रैक्टिस करेंगे हम। शाआ से, शाआ शाऊ, शिता शितुम, शितुम दो के लिए शितुमा, तुम दोनों चाहो। रगदन हैथु शितुमा, इत्मीनान से, जहां तुम चाहो। अब उसके बाद क्या कहा, वला तकरबा, और ये भी नया लफ्ज है, और तुम दोनों करीब ना जाना। करीब से है तकरबा, करीबा यकरबु, इकरब, ला तकरब, ला तकरबा, तुम दोनों करीब मत जाओ। किसके करीब मत जाओ, हादिही शजरता, हादिही तो आप जानते हैं, और मुअन्नस शजरा है इसलिए हादिही है, और शजरा भी नया लफ्ज है, वैसे उर्दू का लफ्ज शजर है। शजरा, इस दरख्त के करीब मत जाओ। फतकूना, फ यानी पस, तकूना, तकूनुना, दो के लिए तकूना, तुम दोनों हो जाओगे। इसमें और एक रूल है, बहरहाल आगे सीखेंगे आप। फतकूना, तुम दोनों हो जाओगे, मिनज़ ज़ालिमीन, ज़ालिमों में से। ठीक है, तकूना जो है ये आप जानते हैं, तो ये कोई नया लफ्ज नहीं है। बहरहाल दो का डुअल का फॉर्म में आया है। फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, बस तुम दोनों हो जाओगे जालिमों में से। उस्कुन, इशारा कीजिए, उस्कुन, उस्कुन रहो, ड्वेल। वो रहा सकना, तो मेरे बाद सकना यस्कुनु उस्कुन, सकना यस्कुनु उस्कुन, साकिन मस्कून सकन, साकिन मस्कून सकन। ऑल राइट, आगे आपके लिए क्विज। हल तस्कुनूना फिल मदीनती, क्या तुम लोग रहते हो शहर में? तो हाँ में जवाब दीजिए, तो क्या होगा, नाम यस्कुनूना फिल मदीनती, नाम तस्कुनूना फिल मदीनती, नाम नस्कुनु फिल मदीनती। तो क्या हमने पूछा था, हल तस्कुनूना, क्या तुम सब रहते हो शहर में? तो आप बोलेंगे हाँ हम रहते हैं शहर में, हम के लिए नस्कुनु, तो सी सही है। ऑल राइट, तो हम आगे चलते हैं। वइज़ क़ुल्ना लिल-मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला, सॉरी, वला तक़ुल फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। तो मेरे ख्याल से ये हो गया है। शाआ भी हम आगे सीखेंगे। अकला, कुलू था उसके अंदर, कुलू, कुला मिनहा, सॉरी कुला था, तुम दोनों खाओ, तो उसने खाया अकला, उसने खाया अकला। मेरे बात दोहराइए, अकला याकुलु कुल, अकला याकुलु कुल। ये जो है ना वीक लेटर के जैसा काम करता है हमजा। तो यहाँ आया था ना, जैसे इससे पहले हमने क्या सीखा था, सअला, सअला यसअलु सल, अमरा यअमुरु मुर, उसी तरह अकला याकुलु कुल। आकिल, माकुल, अक्ल,
आकिल माकूल अक्ल। आकिल खाने वाला, माकूल जिसको खाया गया, फजअलहुम कअस्फिन माकूल, अक्ल खाना, ठीक है। इसी तरह करीबा यानी करीब हुआ, यकरबु करीब होता है। एक बार मेरे बात, करीबा यकरबु इकरब, करीबा यकरबु इकरब, करीब मकरूब कुर्ब, करीब मकरूब कुर्ब। कारिब होता है, ये करीब जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल शजरा अशजार, याद रखिए ग्रामर जो है ना, इसके ये जनरल रूल्स है, एक्सेप्शंस आते रहते हैं, और जैसे जैसे वो करीब उर्दू में भी इस्तेमाल होता है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये हमको सिखाती है बात कि ग्रामर को एकदम आप पत्थर की लकीर इस रूल को मत समझें, इसमें चेंजेस भी हल्के फुल्के आते रहते हैं। राइट, अब आ गया है क्विज, हल ताकुलु कुल्ल यौमिन, क्या आप खाते हैं हर दिन? ऑफ कोर्स खाते हैं, तो जवाब दीजिए ए या बी या सी। ऑलराइट, 20 सेकेंड्स हो गए, हम शेयर रिजल्ट्स, स्टॉप शेयरिंग रिजल्ट्स, एंड सी सही था। मैंने पूछा, वैसे उर्दू का तर्जुमा जो है अदब का था, तो शायद उस अदब में आप लोगों ने उसको कंफ्यूज कर लिया प्लूरल से। मैंने कहा हल ताकुलू, सिंगुलर है, ताकुलू तो ये होगा आकुलू, राइट। क्या आप खाते हैं यानी क्या तू खाता है, तो हाँ मैं खाता हूँ। अगर ताकुलू ना होता, क्या आप सब खाते हैं, तो आप बोलते बी नाकुलू। तो बाज़ लोगों ने बी जवाब दिया है, तो नाकुलू प्लूरल का जवाब है, सिंगुलर का नहीं है। ऑलराइट, तो अब उर्दू का भी मसला था उसमें, ठीक है। तो इसमें क्या है यहाँ पर, सजदे का हुक्म और इब्लीस का इनकार, सजदा और इनकार। तो यहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम की अजमत बयान की गई है, अल्लाह ताला ने सारे फरिश्तों से सजदा करवाया उनको, और यहाँ पर शैतान के इनकार की वजह भी है, अबा वस्तकबरा, और उसने तकब्बुर क्यों किया था, उसको जलन हो रही थी। जैसे इससे पहले दूसरी जगह कुरान में आया है कि क्यों मैं सजदा करूं, मैं जो है आग से बनाया गया हूं और वो मिट्टी से बनाया गया, तो इसकी और तशरीह आएगी। बहरहाल हसद और तकब्बुर, वकाना मिनल काफिरीन, हो गया काफिरों में से। और यहाँ पर बहुत अहम बात है कि अल्लाह के हुक्म का इनकार और तकब्बुर जो है इंसान को कुफ्र की तरफ ले जाता है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जिसके दिल में जर्रा बराबर भी किब्र होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, वो कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तसव्वुर कीजिए कितना खूबसूरत मंजर होगा जब सारे फरिश्ते वो सजदा कर रहे हैं एक साथ अल्लाह के हुक्म पर। इंसान की कितना इकराम किया अल्लाह ताला ने हमारे जो है सुपर अब्बा, बोले क्या बोले हम, जो पहले बाप उनको। और ये भी याद रखिए पहला गुनाह ये हसद था कि आदम क्यों खलीफा, उसको क्यों सजदा मिल रहा है। दूसरा गुनाह तकब्बुर, मैं बेहतर हूं। तो ये बिल्कुल शैतानी और सबसे पहले होने वाले बहुत डेंजरस गुनाह हैं कि दुआ करें अल्लाह ताला हमें से बचाए। और जो इंसान हसद करता है ना, ये बात याद रखिए, तो वो दरअसल अल्लाह ताला पर एतराज़ करता है, क्योंकि अगर किसी को कोई चीज़ मिली है तो उसने तो नहीं लिया ना अपने पास से, उसको अल्लाह ने दिया है। तो जब हम हसद करते हैं तो गोया अल्लाह पर एतराज़ करते हैं कि क्यों दिया आपने। और ये बहुत ही डेंजरस बात है कि अल्लाह ताला के अफेयर्स में हम इंटरफेयर हों। अल्लाह ताला का डिसीजन है, जिसको चाहे दे वो। तो जलने की बात क्या उसमें, आप दुआ करें, हम दुआ करें। अच्छा, यहाँ पर जो बहुत अहम पॉइंट है जिसको जेफरी लैंग ने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इख्तियार दिया था यहाँ पर कि वो अल्लाह की बात को सुने या ना सुने। ये कह दिया वला तक़रबा हाज़िही शजरा। और फिर शैतान का वजूद भी यहाँ पे जो डिस्कस हुआ है सडनली स्टोरी में, ये गोया डबल इम्तिहान था कि दुनिया में भी ऐसे ही होगा कि एक तरफ तो तुमको चॉइस दिया जाएगा, दूसरी तरफ शैतान रहेगा कि उसकी बातों में आओगे या नहीं आओगे। तो ये जब स्ट्रगल बढ़ेगी तब जो है इंसान का सही इम्तिहान होगा। फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, जुल्म कहते हैं किसी चीज़ को उसकी असल जगह से हटा देना और हद से बढ़ जाना। मिसाल शिर्क है, नाहक कत्ल है, गाली है, खता न करना है, अल्लाह की नाफरमानी करना है, और इस सब दरअसल अपने ऊपर जुल्म करना है। अल्लाह ताला को कोई नुकसान नहीं होता। हमारे लिए भी कई दरख्त हैं जिसको अल्लाह ताला, जिससे अल्लाह ने मना किया है मुख्तलिफ किस्म के,
تو ہم کہیں گے اللہ ہمیں ہر طرح کی برائی سے بچا. دعا کر سکتے ہیں آپ جنت کی، اطاعت کی، احتساب کریں اور پلان بنائیں، تبلیغ کریں. alright. اور سوالات کی جوابات بھی دے سکتے ہیں آپ.